Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Dilshad Alam, currently a third year MBBS student at Guwahati Medical College. And in today's video, we'll be talking about all the aspects and all dimensions of what you need to hear about your preparation journey for NEET UG. So whoever is watching, you may be a fresher who is studying in class 11th or class 12th. You may be a complete dropper. It may be your first drop or second drop or third drop, doesn't matter. Or you may be a partial dropper and you are planning to take admission in certain course and continue preparation for NEET 2024. So this video is for all of you. I'll be covering all the aspects. This video will include all your doubts regarding self-study, doubts regarding coaching, whether you have joined an online platform or an offline coaching. We'll be discussing about the importance of previous year's questions. We'll be discussing about mock tests, the approach for entrance exams. We'll be discussing about backlogs. We'll be discussing about different methods of revision. What is the benefit of revision? We'll be discussing about managing boards along with NEET, which is one of the main stress factor for freshers. We'll be discussing about self-discipline during this journey and many other virtues and many more topics. So the video is getting too long, so I have divided this video into two parts. This is the first part and the second part will be uploaded very soon. I have divided the entire video in proper timeline. Feel free to use the timeline. So without further ado, let's start the video. First of all, we'll be discussing about the importance of NCERT for your NEET preparation. Now, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? Many of you will be thinking कि भैया we know about the importance of NCERT, right? Yeah. But those who are freshers, who are just preparing for the first time, they need to be addressed the importance of NCERT. Many of you know, that's good, but जिनको नहीं पता and who are roaming here and there for other resources, please have your feet stick to NCERT. There are other resources which you need to look upon are for your practices, your basic concepts and your basic readings, especially in biology and in inorganic chemistry should be from NCERT. There are some theoretical topics in physics as well, which is to be covered from NCERT if you don't want those questions to get wrong. Okay, जो भी droppers है and partial droppers है, you very well know the importance of NCERT and कहीं ना कहीं आपके इस बार की preparation में you yourself have realized there was something missing in the preparation. Maybe the understanding of NCERT could have been better. Maybe your practice could have been better. Whatsoever be the reason. In short, NCERT is the Bible, is the Quran, is the Gita for your NEET preparation. Please make sure you go through it 15 to 20 times in the entirety of your preparation. And regarding what books to follow, only 9 months left. I hope every one of you are following a certain book. Stick to that book. And for reference, I have a video made on whatever books need to be followed. It is your personal choice, but you can go through that video once. This will be pinned up in the description box. Now to talk on the importance of self-study and your questions that how to manage self-study along with coaching platforms. In short, अगर मैं बताऊँ तो self-study is one of the major factors. कितना अच्छे से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कितने इफेक्टिवली आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दैट वेरी मच क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन यू एस्पिरेंट्स. बहुत लोग पूछा करते हैं कि भैया कितने घंटे पढ़ने से दैट इज इनफ फॉर योर नीट प्रिपरेशन. प्लीज माइंड कि डू नॉट एसेस योर सेल्फ स्टडी on the basis of long hours. ठीक है ना? Somebody may study 1 hour and he may be covering 3 topics along with some questions, and you are sitting for 4 hours and you are just reading the book only covering 3 topics. So you can easily assess किसका ज़्यादा effective self study हो रहा है, and that only makes the difference in the long run. Fine, this is applicable for all entrance exams. Your self study is the main key factor in all entrance exams, be it NEET UG, be it NEET PG, okay, be it other entrance exams like JEE and all. Now if you have joined a coaching institute, बहुत students का complaint ये होता है कि like the freshers, they attend their school, they attend their college, then they attend their coaching institute. रात को आते आते थके हारे बेचारे पढ़ नहीं पाते. मेरे से काफ़ी जूनियर्स ने कांटेक्ट किया है कि भैया वी आर नॉट गेटिंग टाइम टू सेल्फ स्टडी. उसके बारे में बताइए. तो if you have joined an online platform, it is very easy for you to manage self study according to your lecture hours. lecture hours के बाद जो जिस चीज़ का lecture हुआ है, just cover up that after the lecture. और उसके बाद you will get time. आपको एक अच्छा slot 3 घंटे का तो मिल ही जाएगा. Be it at night, ठीक है, अगर आप night person हो, अगर आप morning bird हो
तो फिर उस 3 आवर्स के स्लॉट को आई मीन टू से कि आपका एक मेजर स्लॉट होना चाहिए दिन में, एटलीस्ट एक मेजर स्लॉट, और कुछ माइनर स्लॉट्स होने चाहिए। तो जो मेजर स्लॉट है ना, मेक श्योर दैट इज डिस्ट्रैक्शन फ्री। उसको आप रात को रखो, उसको आप अर्ली मॉर्निंग रखो, दैट इज ऑन यू, ठीक है। बट फॉर द स्टूडेंट्स, for the freshers who are attending school, who are attending coaching also, and later on they are coming, they complain कि भैया हमको स्कूल के होमवर्क्स भी कंप्लीट करने होते हैं, हमको कोचिंग के DPPs भी लगाने होते हैं, सेल्फ स्टडी कहाँ करें, सेल्फ स्टडी कब करें। सो फॉर दैट प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सेट क्लियर योर प्रायोरिटी। आप स्कूल अटेंड कर रहे हो, फाइन, बट योर मेन प्रायोरिटी इज नीट, isn't it? If your main priority is NEET, make sure whatever you do, whatever effort you are giving in should count towards NEET, ठीक है। इंग्लिश का होमवर्क है, उसको आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। एक चीज़ आप कर सकते हो कि जैसे फिजिक्स का कुछ होमवर्क है, ओके, ट्राई टू सॉल्व इट मोर ऑन अ कंसेप्चुअल बेसिस। आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस रटने नहीं है, कुछ एक डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन रटना नहीं है, ठीक है। एग्जाम से पहले जस्ट पास होने लायक आप कवर कर लो, आपका नीट का प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत आएगा, मेक श्योर यू यूटिलाइज योर एंटायरिटी ऑफ योर टाइम। जब आप कॉलेज से आ जाते हो थोड़ा रेस्ट ले लो, उसके बाद एक स्ट्रेच में आप पढ़ाई ख़त्म कर लो, ठीक है। रात को अगर आपको ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा, बिकॉज ऑब्वियसली यू विल बी टायर्ड, तो आई विल सजेस्ट यू कि जो स्टूडेंट्स है ना, जो आप स्कूल अटेंड करके, कोचिंग अटेंड करके वापस रात को आके थक जा रहे हो, स्लीप अर्ली, तो वेक अप सुबह सुबह आप अपना वो लॉन्ग शिफ्ट कर लो। इट विल बी टफ फॉर some of you guys, but this is totally on you. This was just a suggestion from my side. And for the partial droppers, जो कोई एक दूसरे कोर्स में एडमिशन लेंगे and you'll be preparing for your NEET. See, this is a difficult task to do two things in the same time. There will be peer pressure, no doubt. There will be like people will look down at you कि यार तेरे से कैसे होगा, but remember people have done this. इस बार भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने BDS से, BAMS कोर्स से नीट क्रैक किया है, मतलब कोर्स में रहते हुए नीट क्रैक किया है, और दिस टाइम दे विल बी गेटिंग MBBS सीट्स, ठीक है। सो दिस विल बी डिपेंडिंग ऑन हाउ डेडिकेटेड यू आर। दिस विल बी टफ, लो डेज भी रहेंगे, इफेक्टिव डेज भी रहेंगे। यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आप टाइम वेस्ट ना करो, द पार्शियल ड्रॉपर्स स्पेशली। एंड आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को थोड़ा लेस इंपॉर्टेंस दो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने से वी नो कि कॉमन सॉल्व करने से आपका काम हो जाता है। सो ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको नीट में देना है, ठीक है। कभी कभार आपको उस मेंटालिटी से जाना होगा कि भाड़ में जाए बाकी सब, ठीक है ना। जिनको जो बोलना है बोलने दो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, लेट मी डू माई जॉब, बट यू हैव टू बी ट्रूथफुल टुवर्ड्स योर वर्क। वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस आप में से जो रहता है, दैट इज अबाउट टाइम टेबल, अबाउट स्केड्यूल। आप लोग वीडियो सर्च करते रहते हो कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव टाइम टेबल फॉर नीट प्रिपरेशन। मुझे एक बात बताओ, आप कब उठते हो, आप कब सोते हो, आप कब खाना खाते हो, आप कब अपने फैमिली के साथ होते हो? आई डोंट नो। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट समवन टू क्रिएट अ टाइम टेबल? ऑफ कोर्स वन कैन सजेस्ट यू अ जनरलाइज्ड टाइम टेबल, बट मेक श्योर कि आप खुद से अपना टाइम टेबल सिलेक्ट करो। एक्सपेरिमेंट फ्यू टाइम टेबल्स, लाइक थोड़े थोड़े अपने टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखा करो। द मेजर इवेंट्स शुड बी लाइक कांस्टेंट, कि अगर एक चीज़ आप फिक्स कर सकते हो कि मुझे सोना इतने बजे, मुझे उठना इतने बजे, योर स्लीप ड्यूरेशन अगर आपका फिक्स हो गया, आप बाकी चीज़ों को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो। आई विल सजेस्ट कि शेड्यूल एवरी सिंगल डे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फिक्स कर दिया है कि 10 से 12 में पढ़ूंगा, 12 से 2 में नहाऊंगा, खाऊंगा, देन आई विल टेक रेस्ट, फिर 3 से 5 में पढ़ूंगा, फिर 5 से 6। नॉट लाइक दैट। उसमें क्या होता है ना, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यू विल बी बर्नड आउट, एंड उसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि जो भी आप शेड्यूल बनाओ उसका 100% कवर नहीं होगा। वी आर ह्यूमन्स। लेकिन अगर आप 60 to 70% भी कवर कर रहे हो, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। दैट्स सिंपल एज दैट। बट very logical and very easy technique will be make your schedule night before that day, कि the next day you already know कि what are the things you need to do in that particular day, और कहीं पे भी आपका वक्त ज़ाया ना जाए। make sure कि you at least cover 2 subjects in a single day, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट 2 सब्जेक्ट्स इज नेसेसरी एंड इज़ पॉसिबल। तो आप 2 सब्जेक्ट को एक दिन में कवर करो। आप कब पढ़ना चाहते हो, सुबह पढ़ना चाहते हो, आप लेट नाइट पढ़ना चाहते हो, दैट्स ऑन यू। आई विल नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट दैट। चलो अब बात करते हैं कि व्हाट शुड बी द अप्रोच टुवर्ड्स योर एंट्रेंस एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि आपको MCQs
अपीयर करने हैं जब आप नीट के लिए बैठोगे। तो योर अप्रोच शुड बी ऑब्जेक्टिव, राइट। मैं आपको 2 इंस्टेंस देता हूँ, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्या चीज़ करना चाहते हो। आपको कुछ टॉपिक्स का सब कुछ जानना है या फिर सारे टॉपिक्स का कुछ कुछ जानना है। आप बताओ कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। आपको सारे टॉपिक्स का कुछ कुछ जानना है, ठीक है, उससे आपका काम बन जाएगा। सो यू शुड हैव दैट सुपरफिशियल ऑब्जेक्टिव अप्रोच। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अच्छे से कंसेप्चुअली पूरा आपको क्लियर करना है, ठीक है, बट मैक्सिमम थिंग्स देर इज़ अ रूल कॉल्ड 80-20 प्रिंसिपल, दैट 80% ऑफ योर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम 20% ऑफ योर कोर्स। तो आपको उस 20% को खुरेद के निकालना है। वो कैसे होगा? आप जब पढ़ते पढ़ते यू विल स्टार्ट रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग। आप जब 15 से 20 बार NCERT को चबा चुके होगे तब आपको 20% दिखेगा, और उन 20% में से you will get out 80% of the output of your marks. So this should be the approach whenever you studying. You should study with the mindset कि इस पेज से जो भी क्वेश्चन बने नीट में मेरा उसमें से कुछ गलत ना हो। There are various methods. मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ। एक तो है जो जनरल मेथड है। आपने पहले बुक पढ़ा, आपने पहले रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ा बायोलॉजी से, उसके बाद आपने NCERT फिंगर टिप्स उठाया बायोलॉजी का, एंड यू सॉल्व द 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन में आपके 85 क्वेश्चंस करेक्ट हुए। दैट मीन्स आपने बहुत अच्छे से उस चैप्टर में कमांड किया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज वन अप्रोच। सेकेंड अप्रोच इज ज़्यादा बेनिफिशियल फॉर द ड्रॉपर्स, ठीक है। जो फ्रेशर्स है वो फर्स्ट अप्रोच से आराम से आप जा सकते हो। जो सेकेंड अप्रोच है वो ड्रॉपर्स के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। दिस इज नोन एज रेट्रोग्रेड अप्रोच। जो क्वेश्चन सेट आप सॉल्व करना चाहते हो उसको आपको पहले खोल लेना है और आपको पहले उसको सॉल्व कर लेना है। आपको 50 मिले 40 मिले डजंट मैटर, ठीक है। उसके बाद आपको बुक खोलना है एंड देन यू नीड टू रीड दैट चैप्टर। माइंडेड कि जो क्वेश्चंस आपने गलत किए होंगे ना, आपको वो डायरेक्टली दिखेगा बुक में कि इधर से वो क्वेश्चन उठाया गया था, एंड यू विल मार्क दैट जो आपसे गलत हुआ था आप उसको हाईलाइट करके रखोगे। एंड जस्ट इमेजिन ऐसे आप करते रहो, आपका जो NCERT है वो कितना फिल्टर्ड हो जाएगा। आप समझो, इंटायर NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसमें से भी जो 20% है जो क्रीम है वो आपको पता चल जाएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, किस फ्रीक्वेंसी में हमको मॉक टेस्ट देना है, पार्शियल मॉक टेस्ट कितना देना है, हमको फुल मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना है, मॉक टेस्ट से हमें क्या फ़ायदा होगा, विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉक टेस्ट इज द मिरर, द रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन। हाउ विल यू एसेस कि एक चैप्टर आपका हो गया है, आपने उस चैप्टर के DPP सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उस चैप्टर को आपने 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया है, बट हाउ विल यू नो कि आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं। एग्जैक्टली व्हेन यू सिट फॉर द एक्चुअल एग्जाम फॉर्मेट, व्हेन यू विल सिट फॉर मॉक टेस्ट, तभी आपको पता चलेगा कि वो चैप्टर आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी है कि नहीं। बिकॉज एग्जाम में जस्ट आपका नॉलेज चेक नहीं होता, तब आपका स्ट्रेस फैक्टर भी चेक होता है कि आप स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं। एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट चेक होता है। तो वो सारे फैक्टर्स को एसेस करने के लिए मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट में आपको 3 चीज़ें बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। सबसे पहले यू हैव टू चेक ऑन योर टाइम मैनेजमेंट, आप कितने अच्छे से टाइम मैनेज कर पा रहे हो, राइट। नेक्स्ट थिंग इज योर नेगेटिव्स आपको टारगेट करना है कि आप सिंगल डिजिट में लेके आओ। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत अच्छा आता था, बट बिकॉज ऑफ हायर नेगेटिव्स, उनसे कम कॉन्सेप्ट वालों को जिनका एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा था उनको ज़्यादा अच्छा रैंक आ गया। मेक श्योर कि यू टारगेट फॉर सिंगल डिजिट नेगेटिव। आपको जितना भी स्कोर आए, ठीक है, इनिशियली हमको स्कोर में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी, ठीक है। अगर आप 40 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपकी 40 करेक्ट होनी चाहिए। दिस शुड बी योर अप्रोच, ठीक है। वन मोर थिंग इज कि जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो एग्जाम में, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। दैट यू शुड एनालाइज आफ्टर गिविंग योर मॉक टेस्ट कि जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, इधर आपने वो तुक्का मारा था, वो तुक्का गलत हो गया। अगर वो तुक्का है तो उसको तो आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट थिंग कैन बी कि आपको लगा था एग्जाम में कि ये आंसर होना चाहिए, आपको रिकॉल हो रहा था कि ये आंसर होना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि नहीं, आप किसी और चीज़ से इसको कंफ्यूज कर गए। तो फिर आप जाके NCERT में उसको मार्क कर दो कि मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने इसको वापस से पढ़ लिया है। थर्ड थिंग इज़ कि आपको ना एग्ज़ाम में बस रिकॉल हो रहा था कि 5th लाइन में इस पेज के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, लेकिन वो वर्ड याद नहीं आ रहा था, वो आंसर का वो कीवर्ड याद नहीं आ रहा था। जस्ट हाईलाइट दैट वर्ड आफ्टर योर मॉक टेस्ट। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर द क्वेश्चन विल बी रिपीटेड ना, आपको वो हाईलाइटेड वर्ड याद आ जाएगा। गेटिंग इट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। किस फ्रीक्वेंसी में आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए और कैसे टाइप के मॉक टेस्ट देना चाहिए, दिस
is very important to know. Initial days में fortnight mock test is very good. Like initial days मतलब एकदम start of the preparation से up to 3 months left for the exam, तब तक आपके fortnight exams are well enough. ठीक है, हर 14 दिन में आप एक मॉक टेस्ट दो, दैट इज़ वेल इनफ. कैसे टाइप के मॉक टेस्ट देने चाहिए? मेक श्योर मॉक टेस्ट आर NCERT बेस्ड. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पता है मॉक टेस्ट को थोड़ा टफ रखा जाता है ताकि ना आपको एक्चुअल एग्जाम में जाके मज़ा आए. क्यों? क्योंकि आप अगर थोड़े से टफ मॉक टेस्ट में आप सपोज 550 स्कोर कर रहे हो, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसी रीज़न से रखा जाता है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, कि आपको जब इजी क्वेश्चन आए ना तब आप ज़्यादा स्कोर कर लो. आप अगर मॉक टेस्ट में 550 स्कोर कर रहे थे, आप एग्जाम में जाके आपको 600 आ जाए, बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू हैव अ गुड एक्यूरेसी. सो प्लीज़ कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड वेन एवर यू आर अपियरिंग फॉर मॉक टेस्ट, एंड कीप योर क्वेश्चन पेपर्स सेफ. वो लास्ट में रिविजन में बहुत अच्छा काम आता है. तो अपने जो मॉक पेपर्स है उनको संभाल के रखा करो, ठीक है. And yeah, this is for mock test. If the video was beneficial for you and you are new to the channel, make sure you subscribe it for more content. Make sure you like it, share to your friends, do comment whatever you felt like and whatever doubt you are having. I'll be glad to answer you all. Let's catch up in the new video. Bye bye.